یہ قدرت کا اصول ہے کہ ماں اپنے بچی کی دیکھ بھال کرے، سینے سے لگائے، دودھ پلائے، اس کی خبر گیری کرے 24 آور. بچے کی ضرورت ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، بچے کی ضرورت ہے. یہ ماں آمنہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے اور بچہ اس چیز کو ترس رہا ہے کہ میری ماں مجھے لوریاں دے، مجھے اپنا دودھ پلائے. یار 8 عورتوں کا دودھ پیا محمد نے، مختلف عورتوں کا. ان کا دودھ تھا یا نہیں تھا، وہ کیسے پلاتی تھی، کہاں سے لے کے آتی تھی دودھ، ان کی چھاتی میں دودھ ہو سکتا بھی نہیں تھا، کیا وہ صرف ان کو طفل تسلی دیتی تھی. 8 عورتوں کا ذکر ہے لیکن آمنہ کا ذکر نہیں اس کے اپنی ماں کا کہ اس نے بھی اس کو دودھ پلایا ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اس ویڈیو کلپ میں اس نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ مبارک نہیں پلایا. یہ اس سے بھی بدتر اعتراض جا سکتا ہے. اس کا کیا ہے؟ کیونکہ لعنتی خدا کے لعنتی پیروکار، لعنتی بیٹے جو دل میں آئے کر سکتے ہیں، ان کے کوئی نہیں. بہرحال اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنا دودھ نہیں پلایا. جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں مدارج النبوت حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، یعنی کہ سیرت النبی کی کتاب ہے، حدیث مبارکہ بہت زیادہ اس میں ملتی ہیں. مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 18 اور 19 پر مرقوم ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو لہب کی لونڈی، آزاد کردہ لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا. پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلہ میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا. مدارج النبوت آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی، ٹائپ کریں، کسی نہ کسی نے لازمی اپلوڈ کی ہوگی تو مل جائے گی، آپ چیک کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر وغیرہ بھی بتا دیا. اور دوسرا اعتراض بڑے افسوسیہ انداز میں، بڑا وہ غمگین ہو کر یہ اعتراضات کر رہا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کی والدہ محترمہ نے دودھ نہیں پلایا، وہ ان کو اپنے پاس نہیں رکھا. تو شرفائے عرب شریف کے شرفا کی، شریفوں کی روایت تھی، دستور تھا، عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح یعنی کہ ارد گرد کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. وجہ اس کی کیا ہے کہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان میں سیکھ جاتے تھے. یہ وجہ ہے، اور یہ وجہ بھی آپ کو مدارج النبوت میں ہی ملے گی. اب آگے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارکہ 6 برس کی ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. اب وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی والدہ کے لیے کیا وہ جذبات ہیں
अपनी माँ के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या जज्बात हैं, इसको हम देखेंगे। अल नासिख व मंसूख हदीस मुबारका की किताब है, सफ़ा 284, हदीस नंबर है 630। इमाम अबू हफ्स उमर बिन शाहीन मत्ती, वफात है इनकी 385 हिजरी ने अल नासिख और मंसूख में दोनों ने अपनी अपनी संदों के साथ रवायत किया है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा में हज किया, आप मुझको साथ लेकर अक़बतुल हजून के पास से गुजरे। उस वक्त आप गमज़दा थे और रो रहे थे। आपको रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लगी। मैंने अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, आए हमारा ठहर जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मोहब्बत से मेरा कहा करते थे। मैंने अपने ऊंट के पहलू से केक लगा ली। आप काफी देर तक खड़े रहे, फिर आप मेरी तरफ आए और आप खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मैंने आपसे अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फिदा हूं। आप मेरे पास आए, इस वक्त आप गमगीन थे और रो रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपको रोता देखकर रोने लगी। फिर आप मेरे पास आए, उस वक्त आप खुशी से मुस्कुरा रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या सबब है? आपने फरमाया, मैं अपनी माँ हजरत आमना की कब्र के पास से गुजरा। मैंने अपने रब अल्लाह अज़्ज़ल से सवाल किया कि उसको जिंदा कर दे, तो अल्लाह ताला ने इसको जिंदा कर दिया। फिर वो मुझ पर ईमान ले आई, या फरमाया फिर वो ईमान ले आई, फिर अल्लाह ने उसको इसी तरह लौटा दिया। ये हदीस मुबारका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का अपनी वालदा से जो मोहब्बत, जो अकीदत थी, वो बयान हुई कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, अफजलुल बशर है, तमाम इंसानों से अफजल है, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है। बाद अज बुजुर्ग तू एक किस्सा मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद बुजुर्ग मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती अक़दस है, जो खुदा नहीं, जो सेकंड अल्लाह नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो वो अपनी वालदा मोहतरमा से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी अकीदत रखते थे कि उनके लिए रोते भी थे, उनके लिए दुआ भी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल भी फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी वालदा मोहतरमा को जिंदा फरमाया, उन्होंने ईमान का इजहार किया। तो अब आते हैं दूसरी तरफ, किसकी तरफ? कॉम्बो की तरफ। कॉम्बो कौन? दूसरा खुदा, यस्सु खुदा, जो एक औरत से पैदा हुआ, मरियम से, जिसको ये काथलिक, क्रिश्चियन, मसीही, पलूसी हजरात क्या कहते हैं? खुदा की माँ, सलाम है मरियम, पुरफजल, खुदा तेरे साथ है, और ये वो लंबा है। तो उस खुदा की माँ के बारे में, यानी कि कॉम्बो खुदा की माँ के बारे में, कॉम्बो का मतलब होता है, कॉम्बो यानी कि एक ही चीज में दो चीजें। तो जो यस्सु है, बाइबल का जो यस्सु है, वो इंसान भी, अपने आप को इब्ने इंसान भी कहलवाता है, और खुदा, इब्ने खुदा भी और खुदा भी। वो एक ही टाइम में इंसान भी है, बशर भी है, और एक ही टाइम में खुदा भी है। एक ही टाइम में दोनों चीजें उसमें शामिल है, इसलिए वो कॉम्बो है। तो कॉम्बो खुदा का अपनी वालदा के साथ क्या तर्ज अमल है?
ये देखने वाली चीज है। कौंबो खुदा का अपनी वालदा के साथ जो तर्ज अमल है वो है मुकद्दस मरकस की अंजील, इसका 3 बाब और इसकी 31 आयत। तब उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और वो कहने लगे, देख तेरी मां और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी मां, कौन है मेरी मां, कौन है मेरी मां। इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। मैं मां ही नहीं, और मेरे भाई, और उन पर जो उसके गिर्द बैठे हुए थे नजर दौड़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और बहन और मां है। कातलो कलीसिया वालों, शर्म करो, इसे खुदा की मां कहते हो। यस्सू तो इसे एक ईमानदार औरत नहीं बता रहा, यह अगला हवाला बता रहा है कि मरियम ईमानदार औरत ही नहीं थी, वरना यस्सू खुद ना जाता उसको तो बुला लेता ना। चलो खुद मसरूफ था, तबलीग कर रहा था, लोगों को अंजील सुना रहा था। पता नहीं, समझ में नहीं आया, तक मुझे समझ नहीं आई कि वो कौन सी अंजील लेके आया, कौन सी ऐसी खुशखबरी लेके आया। यही खुशखबरी लेके आया कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई। 2000 साल हो गए, अभी तक वो खुदा की बादशाही नहीं आई। कब से सुन रहे हैं कि खुदा की बादशाही आ गई, खुदा की बादशाही आ गई। उल्टा जाते जाते ये बादशाही, जो जमीन की बादशाही, इस जहान की बादशाही, जाते जाते वो शैतान को सौंप गया। खुदा की बादशाही तो नहीं आई, हाँ शैतान को बादशाही दे गया, और वो बड़ा खुल के काम कर रहा है, मसीहों में बड़ा खुल के काम कर रहा है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखो, नजर आ जाएगा। अब आते हैं ये कौंबो खुदा का अगला स्टेप, अपनी मां के बारे में अगला स्टेप, अगला वो मजीद हवाला जात दे रहा हूं मैं। इसमें इतना वो वाजे नहीं है कि वो कौंबो खुदा का, यस्सू खुदा का, दूसरे खुदा का अपनी मां के साथ क्या रिलेशन था, क्या उसके बारे में जज्बात थे। तो मजीद हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील को, वो अंजील जो यस्सू को कौंबो खुदा बनाती है, वो अंजील जो यस्सू को खुदा बनाती है। और इस अंजील का सबसे बड़ा हाथ है यस्सू को खुदा बनाने में, ये सबसे आखिर में लिखी गई। तो इसके बारे में मसाइल भी हैं, वो फिर किसी वक्त डिस्कस करूंगा। तो इसके देखते हैं दूसरा बात, और इस दूसरे बात की पहली 4 आयत। फिर तीसरे दिन कनाए गलील में एक शादी हुई, और यस्सू की मां वहां थी, और यस्सू और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सू की मां ने उससे कहा, यहां पे और जब मैं हो चुकी है, मगर जब मैं खत्म हो चुकी होना चाहिए, जब मैं खत्म हो चुकी तो यस्सू की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सू ने उससे कहा, अरे औरत, मुझे तुझसे क्या काम। काथलिक में कुछ और है, ऐ खातून है, मगर ये मैं प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ रहा हूं। अरे औरत, मुझे तुझसे क्या काम। ये है दूसरे खुदा का किरदार, इखलाक। वो अपनी मां के साथ कैसा पेश आ रहा है, कैसे पेश आ रहा है अपनी मां के साथ। बातें बड़ी बनाते हो, यस्सू बड़ा हलीम था, यस्सू ये था, यस्सू होली था, यस्सू फलां था, यस्सू खुदा है। वो लांती भी है और लांतियों वाले काम कर रहा है। अपनी मां को क्या रहा है, ऐ औरत। और यही तक खत्म नहीं हुआ, मरते दम तक उसके यही अल्फाज रहे। ये कहां से मिलेगा, ये यूहन्ना की अंजील से में देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसका
उसकी 26 आए। यीशु ने अपनी मां और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर मां से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आए औरत, ये है यीशु खुदा की, कॉम्बो खुदा की जुबान, लैंग्वेज। आज तुम हमें अखलाकियात सिखाने आते हो, ये बताते हो कि इब्राहिम कादरी साहब आप बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, तो सैमी सैमसन कौन सी पार्लियामानी जुबान इस्तेमाल करता है? तुम लोगों की औकात यही है। कोई भी दूसरा मुसलमान, मेरे अलावा कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो तुम लोगों को तुम्हारी ही जुबान में जवाब दे। लानती मलौनों, शर्म किया करो। जब इस्लाम पर उंगली उठाते हो, मैंने वो एक बयान में कहा था कि मैं अमेरिका जाने की कोशिश की, तो कमेंट्स में बड़े अजीब गरीब वो गालतों, तुम लोग मेरा ध्यान तवज्जो से सुनते नहीं हो, ये तुम्हारी पुरानी आदत है, वो चर्च में बैठे बैठे सो जाते हो, सोए हुए बाहर आए बस ये सुखदा ये सुखदा ये सुखदा, जीसस जीसस जीसस। तो बात ये नहीं होती। मैं इसलिए बाहर अमेरिका जाने की 3 बार कोशिश कर चुका हूं, मुझे वीजा ही नहीं मिला। मैं वो उस वजह से नहीं, जैसे हमारे ये बड़े सगीर के लोग, एशियाई लोग अमेरिका जाते हैं अय्याशी की घर से, ऐसा कोई अपनी माइंड नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बचा हुआ हूँ, 40 साल की उम्र हो गई है, अभी तक औरत से बचा हुआ हूँ। आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक बचाए रखे। तो किसी बदबख्त सैमी सैमसून को खत्म करने के लिए, या इसको हमने सामने मेरे बिठाओ, या किसी के भी अगर इख्तियार में, किसी की भी कोशिश में हो, मेरी तमाम अमेरिका वालों से, पाकिस्तान वालों से, किसी से भी, सबसे, तमाम जितने भी हैं, आप मसीहों से भी गुजारिश है, आप क्रिश्चियनों से भी गुजारिश है कि इस बदबख्त को एक बार मेरे सामने बिठाओ और इसको कहो कि मेरे सामने एतराज करे इस्लाम पर, हवाले बताए, किताबें दिखाए मुझे। ये जो घड़ रहा है ना किताबें, मैं तो घड़ता नहीं हूं, मैं तो तुम्हें साफ खुला चैलेंज देता हूं कि ये रही बाइबल, इसमें से ये हवाला जो मैं देता हूं, इस में से देख लो देख लो देख लो, इसमें से, इस बाइबल में से, इस बाइबल में से देखो। मैं तो खुला कहता हूं, मैं घड़ता नहीं हूं। ये आज का बयान भी मैंने जो निकाला है, अब वो यीशु की ऐसी, तुम्हारे दूसरे कौमों खुदा की तो ऐसी जिंदगी नहीं है, ना ऐसी वो सीरत मिलती है कि उसके बारे में तो पता ही नहीं है। अंधेरे में सारा कुछ हो गया, अंधेरे में खुदा बन गया, अंधेरे में इंजील आ गई। ये यकीन कर लो कि ये बाइबल, ये दूसरा खुदा, ये बाइबल का खुदा तुम्हें निजात कतई नहीं दे सकता, कतई निजात नहीं दे सकता। ये मेरा दावा है। कहीं पर कोई भी अपना मुनाजर मेरे सामने बिठा दो, सैमी सैमसन को बिठा दो, अपने पोप को बिठा दो, अपना जो भी बड़ा से बड़ा तुम्हारा वो बनता है, तुम्हारे बड़े बड़े वो वीडियोस मैं देखता रहता हूँ कि वो बड़े अपने वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और मैं तो कोई सिक्योरिटी में नहीं गिर रहा ना। मेरे तो कोई, चलो आप दूसरे मौलवियों के बारे में कहते हो कि जी वो उनकी सिक्योरिटी है, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और भाई मैं तो एक आम सा मुसलमान पाकिस्तानी हूँ, आम सा, वो जिसकी कोई वुकत ही नहीं है। तो मेरे लिए तो मेरे साथ डिस्कस करना, मेरे साथ मुनाजरा करना, मेरे साथ बातचीत करना, मेरे साथ मुबासा करना, वो तो कोई मुश्किल ही नहीं है।